Hello student, today we are going to study Poisson distributions. So what is Poisson distributions? What are the conditions for applying Poisson distributions? What are the applications of Poisson distributions? What are the various properties of Poisson distributions and various examples of Poisson distribution? So all that things we are going to cover in this lecture. Okay. So we start with definition. So what is Poisson distributions? A random variable x. What is random variable? Random variable is that variable which takes countably finite value or countably infinite value. So a discrete random variable is said to follow Poisson distributions if it assumes only non-negative values. Means it takes on either positive value or zero value, but it does not take any negative value, and its PMF is given by this formula. So PMF is given by this formula, means probability at x equal to x is equal to e to the power minus lambda, lambda to the power x upon x factorial, where x going from 0, 1, 2, 3, 4 dot up to infinity, and for otherwise if random variable does not take that value, this value contains otherwise, okay, and for otherwise probability is given by 0, where lambda is n into p, that is a mean. We say that here lambda is a mean, and the mean is a product of number of trials, that is n, and probability of success. So that is the basic definition of Poisson distribution. Now we are going to study when we apply Poisson distribution, means what are the conditions for applying Poisson distribution. So there are 4 conditions, okay, but mainly we study 2 conditions, okay. So first conditions for applying Poisson distribution is that the number of trials here is indefinitely large, that is n tends to infinity. So number of trials is very large means what? Suppose I perform one experiment. Suppose I perform an experiment tossing a coin. If I toss a coin for 10 times, 20 times, 30 times, then and we have to find the probability of any event, then we use binomial distributions. But if I perform that experiment, suppose 100 times, 200 times, 300 times, 400 times, and we have to find the probability of any event, then we use Poisson distributions. When the number of trial is large, very large, then we use Poisson distributions. Okay. So this is the first condition for applying the Poisson distributions. Now the second condition is the constant probability of success, that is P. Okay, constant probability of success for each trial is indefinitely small. For each trial it is indefinitely small. Means हम Poisson distribution अप्लाई कब कर सकते हैं? जब probability ये छोटी रहेगी, हर एक ट्रायल के लिए छोटी रहेगी. अब इसका एग्जांपल कौन सा? Suppose I consider a example of air accident in India. So there is not many air accidents in India. Hardly in India in a year only 1 or 2 air accidents are occurs. But if we consider, suppose in a day how many air accidents occur in India, so it is negligible. Okay, so negligible means what? In एक साल में अगर एयर एक्सीडेंट 1 या 2 हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से एक दिन में एयर एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं? सो इट इज नेग्लिजिबल एंड द प्रोबेबिलिटी इन दैट केस इज वेरी स्मॉल. सो इन दैट केस वी अप्लाई Poisson distribution. Another examples when we apply Poisson distribution where we find the probability is so small. Nowadays we are suffering from coronavirus. We consider a case. Suppose in Nagpur city there are 100 patients suffer from coronavirus, and out of 100 one is dead. So what is the ratio? What is the ratio? या फिर हम बोल सकते हैं what is the probability of death due to coronavirus? Only 1%. 100 में से एक आदमी की डेथ हो गई है, तो probability कितनी रहेगी? Probability ये रहेगी only 1%. So in that case the probability is very very small. So we use Poisson distribution in that case. Okay. Third condition is events are independent. What is events are independent means the happening or non-happening of one event, ठीक है, does not affect the happening or non-happening of another event. That events are called as a independent event.
Okay, another we can say in another way, the probability of any event does not affect the probability of another event. That events are called as a independent event. And number fourth condition is events occur uniformly. Events occur uniformly means what? Events occur uniformly means the mean lambda of event in an interval is directly proportional to the length of interval. Okay. तो अभी हमने देखा कि कंडीशंस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए क्या होती है. सो नाउ वी सी व्हाट आर द applications of Poisson distributions. That means why we need Poisson distributions. Okay. So Poisson distribution used in case where the chance of any individual event being a success is very small. Okay. In general अगर मैं बोलता हूँ कि जहाँ पे probability of success for any individual event के लिए बहुत ही कम, it is a very small, then we use Poisson distributions. Okay. So where we find the probability of any individual event for success is very small. Okay. So these are some examples where we find the probability of any individual event being a success is very small. So first example is the number of printing mistake in a page of book. Okay. So in a page of book there are suppose 200 words or 300 words, and in that words only 1% of printing mistake is happened, or it may be not. Okay, so we can say that the printing mistake, the number of printing mistake in a page of a book is a very small, and the probability for that is also be a very small. Okay, so in that case we apply the Poisson distribution. Another one example we have seen earlier, number of air accident in India in 1 year. Okay, so we can apply the Poisson distribution in that case also. So next example is a number of birth or deaths. Okay, in a town in 1 day or in a 1 week. Okay, in 1 day how many births are there in town, or how many deaths in that town? It is a very small. Okay, it means the probability of birth in that town or probability of death in that town in 1 day or in 1 week is a very small. So we use Poisson distributions on that case also. Another one example, death rate due to coronavirus in T time or T interval times. We discussed this example before. Okay. Another example is the number of telephone calls in 1 minute or in 1 hour. Okay, etc. So number of telephone calls in 1 hour or 1 minute means how many calls you receive in 1 minute? Very rare. How many calls you receive in 1 year in 1 hour? It's a very rare. So that is the probability of number of telephone calls in 1 minute or 1 hour is very small. So in that case also we use Poisson distribution. So that's why we need a Poisson distribution. Okay. हम अभी देखेंगे कि दो नोट्स और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये दो नोट्स आपको पता होने चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ओके, सो पहला नोट ये है कि इफ लैम्बडा बी द मीन नंबर ऑफ इवेंट पर इंटरवल, एक इंटरवल के लिए मुझे लैम्बडा ये मीन दिया है. ओके, देन लैम्बडा इनटू के बी द मीन नंबर ऑफ इवेंट फॉर के इंटरवल. अब इसका मीनिंग क्या है? सपोज करो कि अगर मैं कहता हूं कि पर डे रोड एक्सीडेंट का मीन जो है वो 1, या फिर हम बोल सकते हैं कि पर डे रोड एक्सीडेंट का जो मीन है वो 2 है. ओके, सो फॉर 10 डेज के लिए, ठीक है ना, फॉर 1 डे मीन इज 2. सो फॉर 10 डेज के लिए मीन कितना रहेगा? 2 into 10, that is a 20. That is the meaning of that note. If lambda be the mean number of event per interval, then lambda into k be the mean number of event for k interval. Okay, इस नोट का हम यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में. सेकंड नोट ये है, हम इस स्टेटमेंट का मीनिंग देख रहे हैं. what means by that statement? It represent x be the discrete random variable. These signs we called as follows. Okay, so x follows p naught means Poisson distribution. So the meaning of that statement is x follows Poisson distribution with mean is lambda. Okay, so we denote random variable, ठीक है,
or in problem such type of situation will occur. So we conclude it in that notes. So X follows Poisson distribution with mean lambda. Okay, now we discuss the property of Poisson distributions. So first property of Poisson distributions, for Poisson distribution E of X, that is the expected value of random variable, is equal to variance of that random variable is equal to mean. मतलब एक्सपेक्टेशंस और वेरिएंस की वैल्यू ये दोनों सेम होती है और ये दोनों वैल्यू मीन के बराबर होती है. दैट इज इट इज इन द केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस. अनदर प्रॉपर्टी इज इफ सपोज आई डिफाइन टू इवेंट्स, वन इज ए, अनदर वन इज बी. ए फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस विथ मीन लैम्डा 1 and B follows Poisson distribution with mean lambda 2. Okay, and I define third event, that is a C, which is addition of both the event, that is A plus B. Okay, so C is also follows Poisson distributions. Okay, C is also follows Poisson distribution with mean lambda 1 plus lambda 2. That is the mean of A and mean of B. Okay, अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ऐसा प्रॉब्लम ये है कि आपको दो इवेंट डिफाइन किए हैं और आपको कोई तीसरा इवेंट जो है वो डिफाइन किया है A प्लस बी के फॉर्म में. ओके, और C आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है C फॉर C के लिए. तो C के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने की दो तरीके हैं. पहले C का आप मीन निकाल लीजिए. C का मीन, और C पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, उसका मीन आएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2. ओके, ये मीन का यूज करके आप प्रोबेबिलिटी ऑफ C डायरेक्टली निकाल सकते हो. या फिर दूसरा तरीका ये है बाय यूजिंग दैट फार्मूला. इफ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट C इक्वल टू n. ओके, अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे. हम यहाँ पे C का मीन नहीं लेंगे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 नहीं लेंगे. अगर हमें C का मीन नहीं पता है तो हम ये फार्मूला फॉलो करेंगे कि प्रोबेबिलिटी एट C इक्वल टू n इज इक्वल टू समेशन I goes from 0 to n P of A equal to I into P of B equal to n minus I. ओके, अब इसको ध्यान में रखने की जरूरत है. मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा के देता हूँ. अगर मुझे प्रोबेबिलिटी करना है C इक्वल टू 1 में. ओके, अब C मेरा इवेंट है A प्लस बी. अब A प्लस बी में ऐसे दो नंबर के एडिशन करो जहां पे आपको एडिशन 1 मिले. तो वो दो नंबर कौन से होते हैं? हो सकते हैं कि अगर मैं A इक्वल टू 0 लेता हूँ और B इक्वल टू 1 लेता हूँ तो 0 प्लस 1 1 होता है. सो दैट इन दैट वे वी गेट C इक्वल टू 1. या फिर A की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, B की वैल्यू 0 लेता हूँ, सो इन दैट वे वी गेट C इक्वल टू 1. So meaning of P equal to P, probability of C equal to 1, we can find in that way that probability at A equal to 0 into probability at B equal to 1 plus, because there is a summation sign, that's why it's a plus or probability at A equal to 1 into probability at B equal to 0. So in that way we can calculate the probability of C in two ways. Okay. So that is the property we have discussed, application of Poisson distribution, two notes and properties of Poisson distributions. Now we will continue the problems on Poisson distributions. Okay. Okay. Now we move towards numericals. So we are going to discuss first numerical. The number of industrial injuries for working week for per working week. In a particular factory is known to follow Poisson distribution with mean 0.5. So here we have given the data that the number of industrial injuries per working week, okay, in a particular factory. So it is a example of Poisson distribution, or we can solve this example by using Poisson distribution because in a factory there are rare accidents are happen. So in that case we given that the mean is 0.5. okay, मतलब क्या कि अगर कोई भी इंडस्ट्री रहे, इंडस्ट्री में इंजुरीज होने के चांसेस या फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं. और जहां पे प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, मतलब निग्लिजिबल रहेगी या फिर इट टेंड्स टू 0, वहां पे हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे. तो यहाँ पे बोला है कि द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजुरीज पर वर्किंग वीक, मतलब एक वीक के लिए, ठीक है, आपको मीन दिया है 0.5. एक वीक के लिए मीन 0.5 है, तो 2 वीक के लिए हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1. 3 वीक के लिए हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1.5 एंड 4 वीक के लिए इट इज 2. ओके, तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
इन अ पर्टिकुलर वीक, आपको एक वीक के लिए निकालना है, इन अ पर्टिकुलर वीक देयर विल बी लेस देन 2 एक्सीडेंट, ओके, मोर देन 2 एक्सीडेंट्स, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड इन अ 3 weeks period there will be no accidents. So we start first. Let us define the event X, the number of accident in a 1 week. Okay, तो हमने एक इवेंट डिफाइन किया है X, ओके, और इस इवेंट को मैंने कहा कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन 1 वीक, एक वीक में इंडस्ट्री में कितने एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, इस इवेंट को मैंने डिफाइन किया X है। तो एक वीक में इंडस्ट्री में कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं? हो सकता है एक भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, मतलब वीक कंटेन्स 0। हो सकता है कि एक एक्सीडेंट हो सकता है, इट मींस 1। हो सकता है कि 2 एक्सीडेंट हो सकते हैं, या 3 एक्सीडेंट हो सकते हैं, 4 एक्सीडेंट हो सकते हैं, 5 एक्सीडेंट हो सकते हैं, ऐसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट। तो यहाँ पे हमें यह नहीं पता, यहाँ पे एटमोस्ट कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं ये हमें गिवन नहीं दिया है, ओके। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक वीक में कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं कि 0 एक्सीडेंट हो सकते हैं, 1 एक्सीडेंट हो सकते हैं, 2 एक्सीडेंट हो सकते हैं, ओके। सो इट इज अ रैंडम वेरिएबल एंड इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ओके। नाउ अब मैंने यहाँ पे लिखा कि x follows Poisson distribution with mean 0.4, ठीक है। नोट में हमने पढ़ा था कि हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, दिस is our event, that is x, and it follows Poisson distribution. So we have given it in problem and with mean 0.5. So here lambda is a mean, that is 0.5, and we use Poisson distribution. The formula for Poisson distribution is P is equal P of x equal to x is equal to e to the power minus lambda, lambda to the power x upon x factorial, okay। तो हमें देखना क्या है यहाँ पे कि आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ओके, कि अगर इन अ पर्टिकुलर वीक, हम अगर एक वीक की बात करते हैं, इन अ पर्टिकुलर वीक, ओके, सो एक वीक में 2 से कम एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने, ठीक है ना। एक वीक में 2 से कम एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं? तो 2 से कम एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं? तो यहाँ पे मैंने x डिफाइन किया था, नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन 1 वीक, और आपको पूछा गया है नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन 1 वीक कितने हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन आपको पूछा गया कि एक वीक में 2 से कम एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं? अब 2 से कम एक्सीडेंट मतलब कितने हो सकते हैं? 2 से कम एक्सीडेंट मतलब एक तो एक भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, मतलब 0 एक्सीडेंट हो सकते हैं, या फिर एक एक्सीडेंट हो सकता है, ओके। 2 नहीं हो सकते क्योंकि आपको पूछा कि 2 से कम एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने, तो 2 इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, मतलब क्या कि हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी जब हमारा x क्या रहेगा, 2 से कम रहेगा, लेस देन 2, ओके। सो लेस देन 2 it contain 2 random variables, that is a 0 and 1, okay। So we have to find the probability at x equal to 0 and we have to find the probability at x equal to 1। 2 से कम एक्सीडेंट मतलब कितने एक्सीडेंट? एक तो कुछ भी एक्सीडेंट नहीं हो सकते, मतलब 0 या फिर 1 और 1, ओके। जहां पे और आएगा वहां पे एडिशन आएगा प्रोबेबिलिटी का। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। सो यूज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन e to the power minus 0.5 because the mean is 0.5. So e to the power minus 0.5, 0.5 lambda is 0.5, 0.5 raised to the power 0, that is the value of x equal to 0, okay, and upon 0 factorial, that is x factorial, 0 factorial is 1, anything raised to the power 0 is equal to 1, okay, plus e to the power minus 0.5, it is a mean, 0.5 raised to the power x, that is 1 upon 1 factorial, okay। If we have solved these two terms in a calculator, yeah, or with the help of calculator, we get probability x is less than 2 is equal to 0.9098, that is 90.98%। मतलब एक वीक में 2 से कम एक्सीडेंट होने के चांसेस, मतलब एक भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता या फिर एक एक्सीडेंट हो सकता है, इसके चांसेस है 90.98%, ओके। हमें सेकंड फाइंड आउट करना है, find the probability that in a particular week, okay, there will be more than 2 accident। तो एक वीक में 2 से ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं? अब एक वीक में 2 से ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस मतलब क्या? एक वीक में 2 से ज्यादा एक्सीडेंट होना मतलब क्या होना? 2 से ज्यादा मतलब 3 भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, इस तरीके से। तो we have to find the probability when x is greater than 2 से ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस। So more than 2 accident will be occurred in that factory. It means it happened x equal 3 accident or 4 accident or 5 accident or 6 accident
or up to dot 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 dot. Okay, but we have not given any particular value. हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा लास्ट पॉइंट नहीं दिया है कि उस फैक्ट्री में इतने एक्सीडेंट हो सकते हैं, कि समझ लो कि 100 एक्सीडेंट हो सकते हैं, 200 एक्सीडेंट हो सकते हैं, एटमोस्ट 200 एक्सीडेंट हो सकते हैं, ऐसा कोई भी डाटा हमारे पास नहीं गिवन है। तो यहाँ पे हम ऐसा तो कैलकुलेट नहीं कर सकते कि x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6 डॉट 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 डॉट, इतने सारे पॉइंट्स पे हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते और ना ही आप कैलकुलेशन कर सकते। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉजिक यूज करेंगे। वो लॉजिक ये रहेगा कि आपको पता है कि ये जो फार्मूला है ये पीएमएफ का फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉलोस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और जो रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। सो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज एट रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल टू 1। सभी प्रोबेबिलिटी का एडिशन करोगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा 1। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है जब x इज ग्रेटर देन 2 के लिए। सो वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 and plus probability when x is less than equal to 2 is equal to 1। मतलब 2 से ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस, 2 से ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस एंड 2 या फिर 2 से कम एक्सीडेंट होने के चांसेस, इन दोनों का एडिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1 आएगी। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी व्हेन x is greater than 2 के लिए निकालना है तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x is less than equal to 2। मतलब क्या है, आसान भाषा में बता दो कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है when x is greater than 2, अब x is greater than 2 के लिए पॉइंट हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इतने सभी पॉइंट्स पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालना पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रहती है, 1 से हम 2 से कम वाले पॉइंट्स की जो प्रोबेबिलिटी रहेंगी उसको हम माइनस करेंगे। मतलब क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x लेस देन इक्वल टू 2, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2। अगर 1 में से मैंने इन तीनों प्रोबेबिलिटी का एडिशन माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे। अब आपने इसके पहले निकाल लिया कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 पे और प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 पे, इन दोनों का जो एडिशन आता है प्रोबेबिलिटी का वो आता है आपका 0.9098। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद में हमें ओनली निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 पे निकालना है। तो x इक्वल टू 2 के लिए हम निकालेंगे e टू द पावर माइनस 0.5, दैट इज मीन 0.5 raised to the power 2 the value of x upon 2 फैक्टोरियल। इन सबका कैलकुलेशन करके आपको प्रोबेबिलिटी जो मिलती है, प्रोबेबिलिटी एट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉरी एट x ग्रेटर देन 2 इज 0.0144, दैट इज अ 1.44%। मतलब किसी फैक्ट्री में 2 से ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो 1.44% है, बहुत ही कम है। ओके, अब हम मूव करते हैं हमारा थर्ड फाइंडिंग्स। हमें निकालना है इन अ 3 वीक पीरियड, मतलब 3 वीक के लिए, ठीक है ना, देयर विल बी नो एक्सीडेंट। मतलब अगर मैं 3 वीक की बात करता हूं तो वहां पे एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा, इसके चांसेस कितने। तो हमें जो डाटा गिवन दिया है, मीन गिवन दिया है वो एक वीक के लिए है, एक वीक इंटरवल के लिए है। सो एक वीक के लिए हमारे पास जो मीन रहता है, मीन फॉर 1 वीक इज 0.5, और इस 1 वीक के लिए मैंने जो इवेंट डिफाइन किया है वो मेरा इवेंट जो है x है, दैट इज नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन 1 वीक। ओके, सो 1 वीक के लिए मैंने x इवेंट डिफाइन किया है और 1 वीक के लिए मुझे मीन दिया है 0.5। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे 3 वीक पीरियड के लिए वहां पे एक भी एक्सीडेंट नहीं होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 1 वीक के लिए मीन 0.5 है, तो सबसे पहले आप एक काम करो, 3 वीक के लिए मीन निकालो। सो मीन फॉर 3 वीक ये होता है 3 इंटू 0.5। हमने नोट देखा था, उस नोट में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। तो 3 वीक के लिए मीन जो रहेगा 3 इंटू 0.5, दैट इज 1.5। ओके, और 3 वीक के लिए आपको इवेंट भी डिफाइन करना पड़ेगा। So I define the event y for 3 week the number of accident in 3 weeks। तो 3 वीक में कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एक्सेट्रा। ओके, हम जो ये प्रॉब्लम है ना, ये नया इवेंट डिफाइन करने के डिफाइन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पुराने इवेंट से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने जो नया इवेंट डिफाइन किया है y, उसके हिसाब से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। नया इवेंट के लिए मतलब मेरा जो न्यू इवेंट है वो y है, और y के लिए मेरे पास जो मीन है वो 1.5 है।
सो मुझे फाइंड आउट करना है कि 3 वीक में एक भी एक्सीडेंट नहीं होता है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट y इक्वल टू 0. ओके, सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे बाय यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन e to the power minus 1.5 is mean for 3 week. Okay, 1.5 raised to the power 0 because the value of y equal to 0 upon 0 factorial. So इसका कैलकुलेशन करने के बाद मुझे आंसर मिलता है 0.223, that is a 22.3%. मतलब क्या कि 3 वीक में एक भी एक्सीडेंट नहीं होने के चांसेस जो है वो 22.3% है. ओके, अगर मैं इस प्रॉब्लम को पुराने रैंडम वेरिएबल सॉल्व करता हूं, दैट इज x से सॉल्व करता हूं. x हमारा था द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन 1 वीक और उसके लिए जो हमारा मीन था वो 0.5 है. तो अगर आपको इससे सॉल्व करना है तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो. इससे प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0. ओके, x इक्वल टू 0, use Poisson distribution formula e to the power minus 0.5. Okay, 0.5 raised to the power 0 because the value of x is 0 upon 0 factorial. अब ये जो है ये 1 वीक के लिए मीन जो दिया है 0.5 है. ओके, हमें 3 वीक के लिए देखना है तो हम क्या करेंगे, इस सेम टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स करेंगे. सो 3 टाइम्स करने के बाद दिस सेम टर्म रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा. यहाँ पे 0.5 रेज़ टू द पावर 0 is 1, 0 factorial is 1, so only remain is e to the power minus 0.5. इसका होल क्यूब. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे आंसर सेम ही मिलेगा 0.223, दैट इज 22.3%. तो हम ऐसे प्रॉब्लम जो है इंडस्ट्री की प्रॉब्लम जहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम है, हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व कर सकते हैं. हमने ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया. यहाँ पर हमने 3 चीजें फाइंड आउट की है कि एक वीक में 2 से कम एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, एक वीक में 2 से ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, और 3 वीक में एक भी एक्सीडेंट नहीं होने के चांसेस कितने हैं. तो आपको होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे.